Hello everyone, welcome to the third lecture of Measurement System. I, Professor Suraj Garud. Before proceeding to third lecture, let's recall what we had already seen in the previous lecture. So guys, in the previous lecture we had seen a generalized measurement system and its function element. What we had seen? Generalized measurement system and its function element, and that each functional element is known as its component, and component is known as element. So there are 6 component or element of any measurement system. These are, first is primary sensing element. Primary sensing element. Second is variable conversion element. Variable conversion element. It also called as what we call transducer. Third is data manipulation element. Fourth one is data transmission element. Fifth is data primary sensing element, data variable conversion element, data manipulation element, data transmission element, its data processing element, and the last is data presentation element. So there are 6 different components of any measurement system. Measurement system is nothing but an instrument, and these are the component of that instrument. Okay, and each component is known as element. So there are 6 elements over here. First is primary sensing element. So what would be the function of primary sensing element? Primary sensing element का function क्या है, क्या करता है actually ये? Primary sensing element is that element which sense the information from the measurand. मेजरेंट से क्या लेगा? ये इंफॉर्मेशन लेगा. मेजरेंट क्या होता है? मेजरेंट इज दैट थिंग विच इज अननोन क्वांटिटी. ओके, सो प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट क्या करेगा? प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट सेंस द मेजरेंट बाय टच, परसेप्शन, विजुअलाइजेशन. ओके, इट कैन सेंस दैट इंफॉर्मेशन एंड बाय सेंसिंग इट टर्न्स इनटू इट्स आउटपुट. क्या करेगा? यहां से इमेजरेंट से इंफॉर्मेशन लेगा और उसको आउटपुट में कन्वर्ट करेगा. बट दैट आउटपुट इज बीइंग इक्विवेलेंट टू वॉट एवर द डाटा इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द मेजरेंट. Okay, means during changing input to output there will be no magnitude changes. Means in that process magnitude will not change. That with the function of primary sensing element. Next, second is variable conversion element. It also called as transducer. We are already seen about it. ट्रांसड्यूसर क्या होता है? ट्रांसड्यूसर एक ऐसा डिवाइस होता है दैट कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. Yes or no? So transducer as that device which convert one form of energy into another form. Got it? So here is the same thing is to be done by this element that converts whatever the data is from primary sensing element. Primary sensing element से जो भी डाटा मिलने वाला है वो किसको ट्रांसफर होने वाला है? वेरिएबल कन्वर्शन एलिमेंट को. ओके, लेकिन जो वेरिएबल कन्वर्शन को डाटा मिलने वाला है वो यही फॉर्म में रहेगा जो कि मेजरेंट के पास है कि नहीं? क्योंकि प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट उसको कन्वर्ट करने वाला नहीं है कि नहीं? बिकॉज जो मेजरेंट से डाटा मिलने वाला है, जो ऑब्जर्वर अपन है वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा. ओके, सो इट मस्ट बी कन्वर्शन ओवर देयर. सो यहाँ पे वेरिएबल कन्वर्शन एलिमेंट क्या करेगा? वेरिएबल कन्वर्शन एलिमेंट क्या करेगा, क्या करने वाला है ये? इट इज अ ट्रांसड्यूसर दैट कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. मीन्स एनी फिजिकल फॉर्म by primary sensing element that convert into
अनदर फिजिकल फॉर्म। जैसे अपन ने एग्जाम्पल देखा होगा, अपन ने देखा होगा बर्डन टू प्रेशर गेज का, है कि नहीं, जहाँ पे अपन टायर में वगैरह एयर भरने जाते हैं एट दैट टाइम। ओके, मीन्स जो प्रेशर, अपन प्रेशर डायरेक्टली सेंस नहीं कर पाएंगे। प्रेशर डायरेक्टली सेंस होगा क्या, नहीं होगा। तो क्या अगर आप प्रेशर का कन्वर्शन वो कुछ तो भी मैकेनिकल लिंकेज में करेगा, देन अपने को जो डायल इंडिकेटर है, डायल इंडिकेटर का कुछ तो भी चेंजेस होगी, उसमें वेरिएशन होगा। मीन्स उसका क्या किया, प्रेशर का जो फिजिकल फॉर्म है उसको कन्वर्ट किया अनदर मैकेनिकल फॉर्म में, है कि नहीं। सो दैट इज द फंक्शन ऑफ वेरिएबल कन्वर्शन एलिमेंट। अनदर इज डाटा मैनिपुलेशन एलिमेंट। मैनिपुलेशन इन द वर्ड्स, मैनिपुलेशन जो वर्ड है मैनिपुलेशन इसमें सभी आ गया, मैनिपुलेशन करना। इसका एग्जांपल भी अपन ने देखा था, अगर अपन कभी दुकान में जाता है ग्रोसरी लेने, वहाँ पे पैन होता है, ओके, इज इट विजिबल और नॉट, लेट्स सी। जो पैन होता है वहाँ पे उसकी रीडिंग वगैरह आएगा, उसके ऊपर एक पैन होता है, ये तुम्हारा है, ये मीन्स मेजरिंग डिवाइस है, जो भी होगा, दिस इज योर मेजरिंग डिवाइस, ओके, दिस इज योर मेजरिंग डिवाइस। और ये तुम्हारा पैन है जिसके ऊपर अपन क्या डालने वाले, ग्रोसरी डालने वाले हैं। बट देखो, जब अपन पैन डालते हैं तो पैन का भी कुछ तो वेट होता है। सो सपोज इसका वेट है सपोज टू भी 250 ग्राम, तो फिर क्या जो भी ग्रोसरी शॉप मालिक है वो ऐसा थोड़ी ना करता है कि 250, हमें सपोज टू भी 500 ग्राम कुछ लेना है, 250 प्लस 500 इसमें डालेगा और यहाँ पे आएगा 750। एट दैट टाइम इट इज टू बी वी विल गेट अ ग्रोसरी ऑफ 500 ग्राम। इज इट नॉट समथिंग लाइक दिस? व्हाट इट हैज डन, इसको क्या करता है, दो हिट हैज अ वेट ऑफ 250 ग्राम, इसको वो क्या कर देगा, जीरो पे सेट कर देगा। इसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ, जीरो पे सेट कर दिया, मीन्स उसने क्या कर दिया, कुछ तो भी मैनिपुलेशन कर दिया। और इस पर जो भी अपन डाटा पुटअप करेंगे, जो भी ग्रोसरी पुटअप करेंगे, उसका वेट कितना रहेगा, 500 ग्राम ही यहाँ पे आपको शो करेगा। गॉट इट और नॉट? This is the function of data manipulation element. Means somewhat if you want to filter that thing, or somewhat we have to reduce the thing, or somewhat there we have to maximize the thing. In that case, data manipulation element is being utilized. Next is data transmission element. Don't confuse is transmission and transducer. Transducer और transmission में confuse मत होइएगा। ट्रांसड्यूसर क्या करता है, दैट कन्वर्ट वन फिजिकल फॉर्म टू द अनदर फिजिकल फॉर्म, मीन्स ये फिजिकल फॉर्म को चेंज करता है, ओके। और ये जो ट्रांसमिशन एलिमेंट है ये फिजिकल फॉर्म को चेंज करेगा नहीं, इतना ध्यान में रखना। दिस इज ओनली फॉर द ट्रांसमिशन पर्पज, मीन्स डाटा ट्रांसमिशन एलिमेंट हैज ओनली दैट थिंग, इट इज ओनली ट्रांसफर द डाटा फ्रॉम वन लोकेशन टू द अनदर लोकेशन। मीन्स एक लोकेशन से सिर्फ अनदर लोकेशन पे ये क्या करने वाला है, डाटा ट्रांसफर करने वाला है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेगा, फिजिकल फॉर्म उसका चेंज नहीं करेगा, ओनली क्या करने वाला है, वो सिर्फ डाटा ट्रांसफर करने का वन लोकेशन टू द अनदर लोकेशन। एग्जाम्पल जो जैसे अपना सर्वर होता है, जस्ट लाइक इट, ओके। देन फिफ्थ वन इज डाटा प्रोसेसिंग एलिमेंट। बिफोर प्रेजेंटिंग टू द रिकॉर्डर, जो भी रिकॉर्डर डिजिटल फॉर्म में अपने को शो करता है रीडिंग, वो प्रेजेंट करने से पहले वी शुड हैव टू डू सम डाटा प्रोसेसिंग एलिमेंट ऑन इट, ओके। उसके अंदर कुछ तो भी प्रोसेसिंग अगर करनी है तो वो क्या करेगा, डाटा प्रोसेसिंग एलिमेंट। अगर इसका अपन एग्जांपल देखते हैं तो इसका एग्जांपल है सपोज टू बी इफिशिएंसी कैलकुलेट करना, किसी व्हीकल की इफिशिएंसी कैलकुलेट करना। उसमें क्या होता है, सपोज आपने किसी व्हीकल की स्पीड पता है, ओके, अपन किसी मीटर से स्पीड उसकी निकाल सकते हैं। तो बाय यूजिंग स्पीड क्या करने वाला हूँ मैं, डाटा प्रोसेसिंग एलिमेंट में सिर्फ हमें स्पीड मेजरमेंट से हम क्या मेजर करने वाले हैं, ओनली स्पीड मेजर करने वाले हैं। बट डाटा प्रोसेसिंग एलिमेंट में ऐसा कुछ तो भी फॉर्मूला पुटअप कर दूंगा कि जैसे भी मेजरमेंट से जो अपने को डाटा मिलने वाला है स्पीड का, है कि नहीं, यहाँ पे वो फार्मूला में पुटअप करने का एफिशिएंसी का कुछ तो फार्मूला रहेगा, उसमें स्पीड की नीड रहेगी, बाकी वैल्यूज उसमें गिवन अप रहेंगे। इस स्पीड की वैल्यू डाटा प्रोसेसिंग एलिमेंट में लेगा और फाइनली अपने को जो मिलने वाले हैं वो क्या मिलने वाला है, दैट वी विल गेट द एफिशिएंसी ऑफ व्हीकल। Got it? So that is the data processing element. Means it has to be do something processing before it is to be presented to the recorder. Recorder को present करने से पहले ये कुछ तो भी processing उसमें करने वाला है। That is the thing. और फाइनल ये तो अपने को पता है ये क्या है तुम्हारा डाटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट। डाटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट क्या करेगा, इट प्रेजेंट द डाटा इन द डिजिटल फॉर्म विच विल सीन बाय द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर वो देखेगा और वो पहचान लेगा कि इसका इतना रीडिंग है। दैट ऑल द फंक्शंस दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेनी टाइम इट्स आस्क्ड इन द एग्जाम, सो केयरफुली यू शुड डू इट। If you had any query regarding this, you must go to the previous lecture, seen that lecture, okay, seen that lecture 1 or 2 times, then you will easily understood. Otherwise you will not understood, plus come to me,
call me, message me, I will talk with you, and I will clear your concept what it is. Okay, so it is most important question. ये basic है तुम्हारा और ये तुम्हें आना ही चाहिए. Okay guys, so today's lecture what we have to see in the let's see in this अपन जनरलाइज मेजरमेंट सिस्टम देखा. अपन इसका अपन एग्जाम्पल देखे, इलिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल बर्डॉन ट्यूब का. इलिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बोलो, ये रहेगा तुम्हारा बर्डॉन ट्यूब का. एक एग्जाम्पल देखते हैं अपन. बर्डॉन ट्यूब. होप दिस इज विजिबल टू यू. ओके, सो लेट वी हैव टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ बर्डॉन ट्यूब. कैसे डायग्राम निकालते हैं सबसे पहले इसके हम देखेंगे बर्डॉन ट्यूब की. You should have to draw along with me, so you will understand how to draw this diagram. Means don't confuse in the drawing the diagrams. Though my diagram is not clear or not properly drawn, you have all the instrument with you, so you should guys draw that diagram properly. Use scales, pencils to draw the diagrams. Okay. So let's see what are the different component is being over there. Okay. ये जो है ये तुम्हारा रहेगा प्रेशर सोर्स. दिस इज योर प्रेशर सोर्स. प्रेशर सोर्स मीन्स यहाँ से अपन इसको प्रेशर प्रोवाइड करने वाला है. दिस इज योर बर्डॉन ट्यूब. ये है तुम्हारी बर्डॉन ट्यूब. बर्डॉन ट्यूब. ओके, दिस इज योर मैकेनिकल लिंकेज. Mechanical linkage. Okay, this is your pinion. This is pinion. This is sector, also called as gear. Sector or gearing arrangement. Gear arrangement. This is your pointer. This is your pointer. Pointer is not going to mark. Is your pointer. This is your graduated scale. Graduated scale. Okay, on which marking is to be done. Supposed to be 10 psi, 10 psi, 20 psi, 30 psi. Okay, these are different markings has to be over there. Okay, so firstly we'll see हाउ इज टू बी वर्क. जो बर्डन टू प्रेशर गेज है तुम्हारा वो वर्क कैसे करता है. ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है प्रेशर सोर्स. इट हैज टू बी देयर बी अ प्रेशर सोर्स. दैट बर्डन ट्यूब
initially in the elliptical form. In which form? Elliptical form. Then there is a mechanical linkage that connects that tube, close end of that Bourdon tube to the sector. Close end of the sectors means it is in between. किसका in between है? Close end of the Bourdon tube और एक sector का. Then this is a pinion. यहाँ पे pinion दिया, इसको connected है. So इसका working क्या है? जैसे ही ये जो Bourdon tube gauge है, मैं जैसे ही प्रेशर उसके ऊपर लगाऊंगा, ओके मीन्स जब टायर के ऊपर आप लगाते हो, व्हाट वुड हैपन, प्रेशर विज गोज इनसाइड, इसके अंदर प्रेशर जाने वाला है, एयर जाने वाली है. सो व्हाट वुड हैपन, इनिशियली दैट Bourdon ट्यूब इज इन इलिप्टिकल फॉर्म. कौन से फॉर्म में? ये इलिप्टिकल फॉर्म में. और जैसे इसके अंदर प्रेशर जाता है या एयर जाती है, व्हाट विल हैपन, दैट इलिप्टिकल फॉर्म ट्राई टू बी अ सर्कुलर. ये क्या करेगा? ये सर्कुलर होने की कोशिश करने वाला है. कैसा होने की कोशिश करेगा? ये सर्कुलर होने की कोशिश करेगा. बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन, देयर विल बी अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एट द क्लोज एंड ऑफ द Bourdon ट्यूब. ये जो क्लोज एंड है Bourdon ट्यूब का क्लोज एंड, यहां पे क्या होने वाला है? अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा. ओके, दैट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज ट्रांसफर. किसको ट्रांसफर करने वाला है? अपन सेक्टर को ट्रांसफर करेंगे विद एन मीडियम ऑफ मैकेनिकल लिंकेज. ये जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ Bourdon ट्यूब का, ये ट्रांसफर किया, कहाँ पे ट्रांसफर किया? यहाँ पे सेक्टर पे ट्रांसफर किया मैकेनिकल लिंकेज से. एंड देन ये क्या करता है, जो सेक्टर है इसको क्या करेगा? जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ पे, दैट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एट द क्लोज एंड ऑफ द Bourdon ट्यूब विच विल ट्रांसफर टू द सेक्टर, which will transfer to the sector through mechanical linkage. That small displacement is to be make into a large displacement by using that pinion. Pinion उसको क्या करेगा? large displacement में convert करेगा. And then on that pinion there will be some pointer and that pointer will shows a reading. Pointer भी उसका displace हो जाएगा, pointer को large displacement होगा. That is okay. Did you understand the concept? होने वाला क्या है इसमें? प्रेशर सोर्स से हम इसको प्रेशर देने वाले हैं. किसको प्रेशर देने वाले? Bourdon ट्यूब को. इनिशियली इट इज इन इलिप्टिकल फॉर्म, और जैसे उसको तो प्रेशर देंगे, दैट इलिप्टिकल फॉर्म ट्राई टू बी अ सर्कुलर, और सर्कुलर होने से यहाँ पे क्लोज एंड में क्या होगा? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा. ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफर होगा सेक्टर गियर मैनेजमेंट, गियर अरेंजमेंट तक. किसके थ्रू? मैकेनिकल लिंकेज थ्रू. एंड यहाँ से ये जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है वो लार्ज डिस्प्लेसमेंट कन्वर्ट होगा. किससे कन्वर्ट होगा? पिनियन से कन्वर्ट होगा. लार्ज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंटर में कन्वर्ट होगा. और पॉइंटर हमें क्या शोज करेगा? रीडिंग शोज करेगा कि उसमें इतना PSI प्रेशर है. ओके, ये हो गया इसका वर्किंग, कंप्लीट वर्किंग हो गया और कंस्ट्रक्शन हो गया. लेकिन ये जो इंस्ट्रूमेंट है, अपन ने पिछले इसमें क्या देखा था कि एवरी इंस्ट्रूमेंट हैज़ इट्स फंक्शनल एलिमेंट, और जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो जो डिफरेंट एलिमेंट्स है उसके अंदर से जाता ही जाता है. तो अपन इस फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा इसमें इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन सा तुम्हारा एलिमेंट है. ओके, सो पहले यहाँ पे देखो प्रेशर सोर्स है. प्रेशर सोर्स से इसको प्रेशर मिलने वाला है Bourdon ट्यूब को. तो क्या Bourdon ट्यूब ही सबसे पहले प्रेशर क्या करेगा? सेंस करेगा, है कि नहीं? सो ये जो Bourdon ट्यूब हुआ ये क्या हुआ? Bourdon ट्यूब इज योर प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट. Bourdon ट्यूब इज योर प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट. इसने सेंस किया, और इसमें क्या दिया? देखो, सेंस करते ही Bourdon ट्यूब ने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट भी दे दिया. स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे दिया. सो द Bourdon ट्यूब इज प्राइमरी सेंसिंग ऑल्सो, और उसने डिस्प्लेसमेंट भी दिया. इसका कन्वर्शन भी किया, मीन्स इट इज वेरिएबल कन्वर्शन एलिमेंट ऑल्सो. सो दैट Bourdon ट्यूब इज नथिंग बट योर primary sensing element as well as its variable conversion element as a transducer also. Then देखो यहाँ पे क्या हुआ? एक जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे, इसमें इसको क्या किया? ट्रांसफर किया. मीन्स डाटा यहाँ से यहाँ ट्रांसफर किया विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग. मीन्स इट इज योर डाटा ट्रांसमिशन एलिमेंट. सो मैकेनिकल लिंकेज जो है तुम्हारे, ये क्या है? तुम्हारे डाटा ट्रांसमिशन एलिमेंट. देन यहाँ से देखो सेक्टर अरेंजमेंट के पास है, सेक्टर अरेंजमेंट ने पिनियन के पास दिया, है कि नहीं? सो जो पिनियन ने क्या किया? जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है उसका कन्वर्शन काम ही किया. ग्रेट लार्ज डिस्प्लेसमेंट है, लार्ज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंटर, तो इसमें से लार्ज डिस्प्लेसमेंट ने कन्वर्शन किया, है कि नहीं? मीन्स क्या किया? मैनिपुलेशन किया. सो ये जो पिनियन है तुम्हारा, जो पिनियन है दैट इज योर डाटा मैनिपुलेशन एलिमेंट. दैट इज योर डाटा मैनिपुलेशन एलिमेंट. देन फाइनली दैट पॉइंटर विल शोज अस द रीडिंग व्हाट एक्चुअली द प्रेशर इट इज. उसके अंदर प्रेशर कितना है ये किसने शो किया? मुझे पॉइंटर ने शो किया. सो ये जो पॉइंटर है तुम्हारा, तो ये जो पॉइंटर है ये क्या हुआ? ये हुआ तुम्हारा डाटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट. व्हाट इट इज डाटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट. सो दिस इज द इलस्ट्रेटिव एग्जांपल ऑफ जनरलाइज्ड मेजरमेंट सिस्टम एंड इट्स डिफरेंट एलिमेंट विल शोन ओवर हियर. सो गाइज, in this lecture we will stop over here. If you have any difficulty regarding this, you may ask to me or comment to me. Okay guys, thank you.
Keep it up.